Assalamualaikum students, welcome to online classes of Foundation Tipu Campus. This is your English teacher. You can see our book New Oxford Modern English book 5. Today we will start our second chapter. Does he remember? मतलब क्या उसको मैं याद था या याद हूँ. In this chapter we will have 4 characters: Mike the visitor, Nabil owner. Mike and Nabil were two friends. Marmaduke the Nabil's pet dog, and Old Man the Nabil's servant who opened the gate for Mike. And these are the difficult meaning we will study in this chapter. Let's start the brief summary. Mike and Nabil were old friends, and Mike visited Nabil's house after a very long time. He recalled his memory by standing outside the gate, and when he entered into the house, he heard the loud bark of dog of Nabil, which frightened him. But when he meets the Nabil, Meet told him about Marmaduke. Marmaduke is the dog which Mike used to tease in his childhood, but now he became older, blind, and much stronger. Suddenly, dog Marmaduke wake up and loudly bark for the Mike. Nabil grabbed the dog and Mike took the advantage and ran away toward the main gate. Let's start the translation to study in detail. Mike stood awaiting at the garden gate. There was a padlock and chain on the gate. It was firmly locked on the wall beside the gate. There was a large round button above the button. There was a sign that said bell. Mike had already pressed it once, but he now pressed it again. He had thought about climbing over the gate and entering the compound, but he knew that the large sign on the gate meant what it said. Be aware of dogs. Below the lettering of this sign, someone had scrawled. माइक जो था वो गेट के बाहर खड़े हुआ था. उसने वो पैडल लॉक और चेन उससे वो गेट जो था वो बहुत पक्का बांधा हुआ था. तो उसने वहाँ पे एक बटन था, उसके नीचे लिखा हुआ था बेल. तो उसने ऑलरेडी उसको एक दफ़ा प्रेस कर दिया था, लेकिन अंदर से कोई आंसर नहीं आया. तो उसने एक टाइम के लिए सोचा कि वो गेट को फलांग के अंदर की तरफ चला जाए, लेकिन उस गेट के बाहर कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो रियल में मीन रखता था. वो लिखा हुआ था बी अवेयर ऑफ डॉग्स, दे विल हैव यू फॉर ब्रेकफास्ट. उसके बाहर लिखा हुआ था कि कुत्तों से बच के रहें क्योंकि वो आपको अपना नाश्ता बना सकते हैं. और वो इस चीज़ को समझ चुका था बिकॉज उसको अंदर से बहुत ज़्यादा डॉग बार्किंग की आवाज़ आ रही थी. Mike thought this was amusing, but he also knew it might be true, judging by the barking he could hear coming from the house. He was not going to take the risk. अब उसको घर के अंदर से मतलब कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए वो इस तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था कि वो फलांग कर अंदर जाए and become food for these creatures. Besides, he now too old to be clinging over gate. Perhaps the dog had heard the bell ringing again, and possibly they had sensed the prey, for the baying became more frantic. It was not a yell or a howl, but a deep thought and a prolonged baying. The animal were obviously hungry. अब उसने जो बेल बजाई थी उससे वो जो डॉग्स थे उनकी जो बार्किंग थी उसमें मतलब मज़ीद इजाफा हो रहा. बहुत ही ऊंचा. वो सिर्फ भौंक नहीं रहे थे, उनके जो भौंकने की आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा करने वाली थी, बहुत डराने वाली थी. उससे लग रहा था कि वो लोग बहुत भूखे हैं. Mike waited and mused about the old days. He shifted from one foot to the other, thinking about all the Cayenne he had visited this very house. Those were the good old days. Nabil was such a good company, and those dogs of his, they were little puppy then. Now he had teased them. How he has teased them. How time had moved on. He was an adult now. अब उसके बाद जब तक कोई गेट खोलता वो वहाँ पे खड़ा होकर वेट कर रहा था और अपना जो पुरानी मेमोरी थी उसको रिकॉल कर रहा था कि उसने कैसे इस घर में आता था, किस तरह के मतलब इवेंट्स जिसने घर ने उसने कौन कौन से मौके जो थे इस घरों में आता था. नबील के साथ उसकी बहुत अच्छी कंपनी होती थी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे ये दोनों. और उसके बाद इन डॉग्स के बारे में सोचता है जो कि उस टाइम पे छोटे छोटे पपीज़ थे और इनके साथ ये खेलता होता था, इनको तंग करता होता था. लेकिन अब वो लोग भी बड़े हो चुके हैं और ये भी बड़ा हो गया है. At last, just as Mike was becoming a little annoyed, an old man came scurrying out of the side door of the house. He appeared with his urgent shuffle to be hurrying, but he took forever to reach the gate. On the seemingly long trip, he scratched
at the while in one pocket after another. When he finally reached the gate, his smile indicated that he had found what he had been looking for, the key to the padlock. अब उसके बाद माइक जो होता है वो अनॉय होता है, इरिटेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो गेट के बाहर खड़ा वेट कर रहा होता है। उसके बाद फिर वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी आ रहा है जो कि एक साइड डोर से निकला है, और उसके बाद वो दरवाजे की तरफ आ रहा है। वो अपनी तरफ से बहुत जल्दी में आ रहा होता है, बट वो ओल्ड मैन होता है, तो इसलिए उससे लग रहा होता है कि जैसे ये बहुत लंबा अरसा लेगा गेट तक पहुंचने के लिए। और उसके बाद वो अपनी कभी एक पॉकेट में हाथ डालता है और कभी दूसरी पॉकेट में हाथ डाल के जैसे लगता है कुछ ढूंढ रहा होता है। और जब वो गेट पे पहुंचता है तो वो एक हल्की सी स्माइल देता है, और उससे ऐसा लगता है कि जैसे वो जो ढूंढ रहा था उसको मिल गया था, और वो ढूंढ रहा था पैडलॉक की। द ओल्ड मैन फंबल विद द की एंड इन ड्यू कोर्स ओपन द डोर। द हैवी गेट स्क्वीज एंड स्क्रीच्ड एज इट वॉज संग ओपन विद मोर डिफ़िकल्टी। अब ओल्ड मैन जो होता है वो कीज़ के साथ कभी एक हाथ में कभी दूसरे हाथ में, वो जैसे एक बूढ़ा आदमी होता है तो समझ नहीं आता, तो वो जल्दी से लॉक खोलता है। तो अब जो गेट जब वो खोलता है तो वो गेट एक साउंड प्रोड्यूस करता है स्क्रीच का, और स्क्रीच का मतलब उससे जैसे वो हम लोग कोई पुराना सा गेट हो उसको खोलते हैं तो उसको जो उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है, इस तरह की साउंड आ रही थी, और इससे लग रहा था कि वो बहुत मुश्किल से वो गेट खोल रहे हैं। The old man stood to one side to let Mike in. He then used some effort to heavy the gate shut again. It was apparent that the gate had been not opened in a long while. उसके बाद वो माइक को रास्ता देता है अंदर आने के लिए। जब माइक अंदर इंटर हो जाता है तो वो गेट को दोबारा से बंद करता है बहुत ही ज़ोर लगा के, और उससे पता चल जाता है कि काफ़ी टाइम से ये गेट किसी ने नहीं खोला था। Mike waited for the old man to lock the gate more firmly, then he followed him to the front gate. उसके बाद माइक वेट कर रहा होता है खड़ा होकर कि कब मतलब ओल्ड मैन दरवाजे को लॉक करे, और फिर वो उसके साथ फ्रंट डोर की तरफ चल पड़ता है। द बैंक फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हाउस रीच न्यू हाइट। माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज टू द ओल्ड मैन, डिटरमाइंडली स्टेइंग अ स्टेप बिहाइंड हिम। अब जो वहाँ से डॉग्स की आवाज़ आ रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा उसकी जो साउंड की पिच थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि वो डॉग्स जितने भी थे वो घर के अंदर से बाग कर रहे थे, और जैसे जैसे घर के अंदर पहुंच रहा था तो उसको वो आवाज़ बहुत ज़्यादा उनकी साउंड की जो पिच थी वो उससे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, और वो इस चीज़ से डर भी रहा था, इसलिए वो ओल्ड मैन के बिल्कुल क्लोज होके चल रहा था, इतना क्लोज कि जस्ट उनके दरमियान में 1 स्टेप का डिस्टेंस था। On entering the hall, Mike was shown into a large, dark living room. The heavy curtain on the window kept out the light, although it was 3 o'clock in the afternoon and there was bright sunlight outside. A table lamp in one corner emitted a dull glow that partially illuminated a small section of the room. Mike could just make out the figure of someone sitting on the sofa near the lamp. अब जब वो हॉल में एंटर हो जाते हैं तो उसके बाद माइक को एक डार्क लिविंग रूम की तरफ दिखाया जाता है। उसके ऊपर उसमें हैवी कर्टन्स विंडो के सामने लगे हुए होते हैं जो विंडो की बाहर से लाइट को अंदर आने से मतलब रोक रहे होते हैं। और उसके बाद ये दिन के 3 बजे होते हैं जब माइक नबील के घर विज़िट करता है, और उसके बाद वो कहता है बाहर बहुत तेज़ सनलाइट थी, लेकिन रूम में जो था वो बहुत ज़्यादा डार्क था क्योंकि विंडोज़ के आगे कर्टन डाले हुए थे। उसके बाद एक रूम में एक कॉर्नर पे टेबल लैंप था, वो ऑन था, और माइक को ऐसा फील हुआ कि जैसे उस लिविंग रूम के सोफ़ा में कोई बैठा हुआ है। हेलो डियर माइक केम एंड ग्रीट फ्रॉम द शेडोज फ्रॉम इट्स बीइंग मैनी ईयर। ओह नबील इज़ दैट यू आस्क्ड माइक नर्वसली। उसके बाद अब माइक को नबील बोल के उसे हेलो और उससे उसको सलाम करता है, और उसके बाद कहता है कि बहुत टाइम बाद तुम यहाँ पे आए हो। और उसके बाद वो माइक कहता है कि नबील वो पहचान जाता है कि वो नबील है जो उससे बात कर रहा है। यस कम द रिप्लाई। The bank continued, but since there was no visible movement in the room, Mike was hopeful that the hounds were behind a secure door somewhere, but he was not completely convinced that this was true. अब जो डॉग्स की आवाज़ थी वो कंटिन्यूसली आ तो रही थी, लेकिन माइक को इस बात की सेटिस्फेक्शन थी कि मे बी वो किसी मतलब किसी रूम के अंदर लॉक्ड हैं, तो इस वजह से उसको थोड़ी सेटिस्फेक्शन थी, लेकिन वो इस बारे में अभी भी कंफर्म नहीं था कि वो कहाँ पे हैं। Mike edged forward toward Nabil. Wait there, Mike, said Nabil. The dog has been locked in the bedroom, but old Marmaduke is asleep here beside me. अब जैसे ही नबील उसकी तरफ जाने लगता है, माइक उसकी तरफ जाने लगता है उससे मिलने के लिए, तो नबील उसको रोक देता है और वो कहता है कि बेशक जो बाकी डॉग्स हैं वो एक रूम के अंदर बंद हैं, बट मेरे साथ जो ओल्ड मर्माडुक वो जो था वो नबील का एक पेट डॉग था जो कि अब बहुत बड़ा हो चुका था,
उसने कहा कि वो मेरे साथ ही सोया हुआ है। मर्मेड्यूक सेड माइक stopping dead in his track. The old Marmaduke, the dog I used to tease when he was just a pup. अब वो कहता है अच्छा वो मरमडूक जिसको मैं बचपन में जो वो छोटा सा एक पपी था तो उसको मैं बहुत ज़्यादा तंग करता था। यस रिप्लाइड नबील, यू रिमेंबर मरमडूक? आई डू शटर्ड माइक। माइक कहता है हाँ मैं जानता हूँ। इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत लंबा अरसा हो चुका है। आई होप यू हैव हिम ऑन अ लीश। आई रिमेंबर आई यूज टू वरी हिम नो एंड। उसके बाद कहता है कि मुझे याद है कि मैंने इसको हर तरह से तंग किया, कि मैंने इसको कभी छोड़ा नहीं था कोई मौका इसको तंग करने का। और वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि अब वो बहुत लंबा टाइम हो गया और उसको ये भी उम्मीद थी कि वो बहुत बड़ा हो गया होगा तो उसको उसने लीश के साथ या किसी स्ट्रैप के साथ बांधा होगा। कैन यू बी श्योर? आस्क्ड माइक। श्योर ऑफ व्हाट? आस्क्ड नबील। दैट ही इज़ अस्लीप, यू कैन हेयर हिम स्नोरिंग कांट यू। अब उसके बाद उसको कहता है कि sorry, I don't think he will remember that far back, said Nabil. He is old and blind now and likes to sleep. And by the way, no, he is not on a leash. अब वो उसको बोलता है कि हाँ लेकिन अब एक डॉग है, उसको इतनी पुरानी बातें याद नहीं है कि तुम नबील हो और तुम इसे बहुत टीज़ करते थे। तो उसके बाद वो कहता है कि वो अब वो ब्लाइंड हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, लेकिन अब वो ज़्यादा सोना पसंद करता है। और वो कहता है वो बांधा हुआ मैंने नहीं है। कैन यू बी श्योर? आस्क्ड माइक। श्योर ऑफ व्हाट? अब माइक उसे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो इस बारे में? वो कहता है किस बारे में? दैट ही इज़ अस्लीप, यू कैन हेयर हिम स्नोरिंग कांट यू। तो माइक उसको नबील उसको कहता है कि क्या तुम नहीं सुन सकते? क्या तुम्हें उसकी स्नोरिंग है, उसकी वो जो सोने के बाद उसके जो मुंह से जो डॉग के मुंह से साउंड प्रोड्यूस होती है, क्या तुम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते? नो नो विस्पर माइक। आर यू श्योर दैट ही डज़ नॉट रिमेंबर मी? वो कहता है कि अच्छा लेकिन तुम्हें क्या पता है कि वो मुझे नहीं जानता? जस्ट देन द स्नोरिंग स्टॉप एब्रप्टली। उसके बाद एकदम से स्नोरिंग बंद हो जाती है। द डॉग फॉर्म ऑन अ सोफ़ा स्टिल। अब डॉग जो होता है वो सोफे पे बैठ जाता है, उसका शेडो उसको नज़र आ रहा था। आ लॉन्ग हेड वाज रेज्ड एंड टू ग्रेट नोसेस स्निफ्ड द एयर लाउडली। नबील एंड माइक डिड नॉट मेक अ साउंड। एकदम से उसे सोफे से एक बहुत मतलब लंबा सा सर नज़र आता है और उसके जो नोस्ट्रिल होते हैं उसमें से उसको एक खौफनाक सी आवाज़ आ रही होती है जिसके बाद माइक और नबील कोई भी साउंड नहीं करते, चुप करके खड़े रहते हैं। देन देयर वाज अ क्योस। उसके बाद वहाँ पे पीस ख़त्म हो जाता है और क्योस शुरू हो जाता है, मतलब वहाँ पे डिस्टर्बेंस, वहाँ पे जो सीन क्रिएट हो जाता है। द डॉर फॉर्म लेफ्ट इनटू द एयर अर्जेंटली स्क्रम्बलिंग द गेट ऑफ द सोफा। आ स्नॉर्लिंग रैगिंग मर्मेड्यूक लीपिंग टुवर्ड माइक ड्रॉन आउट बाय बेइंग द डिस्टेंस बेडरूम। अब जो मर्मेड्यूक होता है वो एकदम सोफे से उठ के नीचे उतरता है और वो माइक की तरफ भागता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन उसका जो साउंड था वो जो उधर के साउंड आ रहे थे डॉग्स के उनसे कई गुना ज़्यादा था। स्टॉप हिम, डू समथिंग, स्क्रीम माइक एज ही टू स्क्रम्बल बिहाइंड अ लार्ज आर्म चेयर। अब माइक जो होता है वो एक चेयर के साथ खड़ा होता है, चेयर के पीछे, तो उसको बोला था रोको इसको, कुछ करो। Nabil acted just in time. He threw himself on top of the dog, pinning it firmly to the floor, slowing it down. Mike saw his chance and took to his heel immediately, heading straight for the front door. अब जैसे ही नबील जो होता है वो एकदम से उस डॉग के ऊपर अपने आप को फेंक देता है और उसको वहाँ पे ज़मीन में दबा लेता है। और इसका फ़ायदा उठाते हुए नबील जो होता है, माइक जो होता है, वो फ्रंट गेट की तरफ भाग जाता है। Nabil could not keep that writhing animal trapped for very long. He was almost as big as he was and much stronger. अब नबील जो था वो इतने बड़े डॉग को अकेला नहीं संभाल सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। माइक reached for the gate handle, wrenched it down, pulled open the door and shot outside, slamming the door firmly behind him. He was not a moment too soon, looking over his shoulder as he raced for the gate. Mike saw Marmaduke great paws up against the window pane next to the door. अब उसके बाद माइक जो नबील जो होता है वो विंडो का जो डोर का जो हैंडल होता है उसको नीचे करता है, डोर ओपन करता है और फ़ौरन से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद वो अपने शोल्डर से इधर उधर मतलब देख रहा होता है कि कोई आ ना जाए और वो वहाँ से भाग रहा होता है। और उसके बाद वो क्या जब पीछे देखता है तो उसको जो मर्मेड्यूक होती है वो शीशे विंडो पैन में से उसके नज़र आ रही होती है, उसको मतलब डराते हुए उसकी तरफ भौंकते हुए। द एनिमल्स लार्ज अनसीन आइज ब्लेज द गार्नेट एंड हिज टीथ वर बेयर्ड. हिज ferocious bark and growl has encouraged the other dog to bay louder. अब उसकी जो आवाज़ थी उस डॉग की वो मज़ीद दूसरे जो डॉग्स थे उनको
मतलब उनको इनकरेज कर रही थी और वो और ज़्यादा भौंकना शुरू हो गए थे। इट सीम एज इट ऑल द डॉग ऑफ द नेबरहुड हैड जॉइन द कैकोफनी। अब उसको ऐसा लग रहा था जैसे माइक को ऐसा लग रहा था जैसे आसपास के सारे जो नेबर्स के डॉग्स थे वो सारे भी उस साथ भौंकना शुरू हो गए हैं, उनकी कंपनी ज्वाइन कर लें। लाइक माइक लिफ्ट अप एम ओवर द गेट लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम एंड कोलैप्स्ड इन अ हीप ऑन द डस्टी ग्राउंड। ही स्टूड अप शेकली एंड स्टिल ब्रीथलेस, डस्टेड हिज जैकेट एंड ट्राउजर विद ट्रेम्बलिंग हैंड। From his pocket he took a large white handkerchief and wiped the sweat off his brow. By Nabil he called out and waved, and he hastily made his way down the road without even turning to look. I will call you sometime. Perhaps we can't meet in town one day. They never did see each other again. अब वो जैसे गेट की तरफ भागता है तो वो एक ग्राउंड में गिरता है, वो डस्टी ग्राउंड होता है। उसके बाद जैसे वो उठता है तो वो कांपते हुए हाथों के साथ अपनी जैकेट को झाड़ता है और उसके बाद वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो हैंकरशिफ निकालता है और उसके साथ उससे अपना स्वेटिंग जो होती है वो साफ़ करता है, वाइप वो करता है। और उसके बाद वो कहते हैं, वो नबील को बाय बोलता है और उसको कहता है कि हम लोग किसी दिन, मैं तुम्हें किसी दिन कॉल करूँगा या हम किसी दिन टाउन में मिलेंगे। लेकिन उसके बाद वो कभी भी मिल नहीं सके। So this was our lesson. I hope you understand it. Thank you so much students. Stay home, stay safe.